Hi friends, welcome back. Today we will do class 8 science chapter number 2 microorganisms friend and foe. So let's start with today's chapter. तो हम चैप्टर को करेंगे कुछ पार्ट्स में कि पूरे एक ही फ्लो में चैप्टर को खत्म करना है. इट्स नॉट इजी और आपको भी इजीली समझ में नहीं आ पाएगा, तो हम इसे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में करके अपना चैप्टर खत्म करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. First of all, what are microorganisms? You can see microorganisms, or we can call them as microbes also. Fine. What are microorganisms? These are small organisms which cannot be seen with the naked eye. Fine. There are various types of living organisms that can be seen around us. But other than these living organisms which you can see, there are many other microscopic organisms also which we cannot see with the help of our naked eyes. Fine. And these organisms are known as microbes or microorganisms. For example, during rainy season, moist bed gets spoiled and its patches get covered with greyish white patches. आपने देखा होगा अगर हम ब्रेड को खुला छोड़ दें तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी वी कैन से इट गेट स्पॉइल्ड. उसमें वाइट वाइट से पैचेस बन जाते हैं, राइट. तो उस पे क्या होता है, माइक्रोब्स आ जाते हैं. माइक्रोब्स या फिर हम कह सकते हैं यीस्ट. यीस्ट भी एक तरह का, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोब जो उस ब्रेड को स्पॉइल कर देता है. फाइन. इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेड पे मच्छर नहीं लगना चाहिए, ब्रेड कवर्ड रहनी चाहिए, बंद रहना चाहिए ब्रेड का पैकेट, राइट. माइक्रोब्स कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल. लाइक अभी हमने क्या देखा था कि माइक्रोब जो था, यीस्ट जो था, उसने हमारे ब्रेड को स्पॉइल कर दिया. इसके अलावा ये तो हुआ हार्मफुल इफेक्ट. अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोब्स आर हेल्पफुल ऑल्सो. हाउ? जो माइक्रोब्स हैं उनकी हेल्प से हमारी सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है. दे create humus in the soil, they provide humus to the soil, they make the soil fertile, right? So there are harmful effects also and good effects also of the microbes. Fine. Water and soil are full of tiny microorganisms, so none of them fall in the category of microorganisms. वाटर और सॉइल में टाइनी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जा सकता. They are small in size and cannot be seen with the naked eyes. Some like fungus that grows on bread can be seen with the help of magnifying glass, but all cannot be seen with the magnifying glass. Only some organisms like fungus, they can be seen with magnifying glass. अगर हमारे पास एक ब्रेड है उस जिसमें व्हाइट पैचेस हैं, अगर हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो उसमें हमें छोटे छोटे गोल गोल टाइप के some round organisms दिखेंगे. They are called fungus. Fine. So most of the microorganisms cannot be seen without a microscope, and hence the name microorganisms or microbes. Clear with this? Let's move forward. इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि क्या होते हैं. माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखे जाते हैं. कुछ जो होते हैं उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं. दे कैन बी हार्मफुल, दे कैन बी बेनिफिशियल ऑल्सो. क्लियर? Now there are four main types of microorganisms. What are they? Bacteria, fungi, protozoa and algae. These are the four types of microorganisms. Viruses are also microscopic, but they are different from other microorganisms. हम देखेंगे आगे कैसे. फिलहाल के लिए हम फोर टाइप्स देखते हैं. क्या क्या है? सी. अभी हमने क्या देखा, माइक्रोऑर्गेनिज्म. There are four types. Fine. First is bacteria. Second one is fungi. Third one is algae. And fourth one is protozoa.
These are the 4 types of microorganisms. Other than these, we have one other type of microorganism also which is different from all these, which is called virus. It is not a living organism, but it is not a non-living organism also. अब ना तो ये नहीं लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ये है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई? कैसे पता करें क्या है ये? ना जिंदा है ना मुर्दा है। देखते हैं, अभी हम ये सब आगे देखेंगे। चलिए, these are different types of microorganisms. You can see these are bacteria, these are algae, Spirogyra, the protozoa, amoeba. Amoeba is very important. It is studied in detail also. Paramecium, ये bread mold, you can see bread पे ये bread पे bread mold भी उग सकता है, bread पे fungus भी उग सकता है, so we can call it fungus also. Penicillium, Aspergillus, these are different types of microorganisms. Now we will study about viruses. फाइन, हमने क्या कहा था? वायरसेस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो ये है क्या? तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। These are different from other microorganisms and they reproduce only inside a cell of the host organism. होस्ट क्या होता है? जिसपे ये अटैक करता है। फाइन, जिस भी बॉडी पे जिस भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेगा ना, उसे हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहेंगे। So common symptoms are cold, influenza, flu, जितने भी कष्ट होते हैं वायरसेस की वजह से होते हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये जो डिजीजेस हैं, these are also caused due to the viruses. See, viruses these are neither living nor non-living. ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अब इसका क्या मतलब है? ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। होता क्या है कि सपोज ये हमारा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, बाकी ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्यूलोज, फाइन, बहुत सारी जितने भी हमारी सेल्यूलोसिक वो है ऑर्गेनेल्स, ये अभी नहीं है, आगे आएगा 9th में। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आगे चैप्टर है, उसमें आएगा। सेल है, कोई भी सेल है, ये सपोज हमारा वायरस है, फाइन। अब ये क्या है भाई? दुखी है, सेल के बाहर है, जिंदा नहीं है। जब तक ये सेल के बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग है। क्लियर? जब तक ये सेल के बाहर है, आउटसाइड द सेल, outside the cell it is non living. ओके, अब क्या किया? ये यहाँ से सेल के अंदर चला गया। अब ये बड़ा खुश है क्योंकि अब ये लिविंग है। इनसाइड द सेल इट्स लिविंग। क्लियर? इनसाइड द सेल वायरस इज लिविंग एंड आउटसाइड द सेल वायरस इज नॉन लिविंग। सेल के अंदर जाते ही ये खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। ये तब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक ये किसी होस्ट बॉडी के इनसाइड नहीं चला जाता, इसे कोई होस्ट बॉडी नहीं मिल जाती। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो आर यू क्लियर विद द वायरसेस? You can see the picture of viruses. There are different types of viruses also. They are of different shapes. They have different works. हर एक अलग अलग डिजीज का अलग अलग वायरस की होते हैं। लाइक कोरोना वायरस, इट्स ऑल्सो अ वायरस। क्या कहते हैं कि कुछ सामान है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, अगर उसे हम कुछ देर धूप में छोड़ देंगे, 5 hours, 6 hours, 10 hours, कुछ टाइम लिमिट होती है,
अगर हम उसे तब तक टच नहीं करेंगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसे होस्ट बॉडी नहीं मिल पाएगी। लेकिन जैसे ही कोई उसे टच करेगा उसे होस्ट बॉडी मिल जाएगी एंड इट विल रैपिडली मल्टीप्लाई इटसेल्फ। क्लियर विद द वायरसेस? नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? बिफोर वी स्टडी दिस, एक इम्पोर्टेंट थिंग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं they can be single celled or multicellular. We can write it as single cellular or multicellular. फाइन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, एक सिंगल सेल का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, कुछ बैक्टीरिया हो गए, उनमें एक ही सेल होता है जो बॉडी के या जो ऑर्गेनिज्म है उसके सारे फंक्शंस करता है, लाइक एक्सक्रीशन, इंजेक्शन, इजेशन, डाइजेशन, जितने भी फंक्शन है वो सारे एक ही सेल करता है। और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, लाइक वी ह्यूमंस, उनकी बॉडी के जितने काम है वो हर एक पर्टिकुलर वर्क डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को दिया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स करते हैं। राइट, लाइक इनके डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम होता है जो डिफरेंट सेल्स से बना होता है, एक्सक्रीशन के लिए अलग होता है, इनटेक ऑफ फूड के लिए अलग होता है, और उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज होती है उनमें। राइट, organelles are actually not different, they are almost same in all the cells but their function is different. right, सेल से बनके हमारी बॉडी बनती है ना, हमारी बॉडी में हर जगह सेल्स हैं। they can be multicellular and they can be single cellular. microorganisms can be multicellular also. fine, मल्टीसेल्यूलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के एग्जांपल, ये तो खैर ह्यूमन हो गया, ये तो ऑर्गेनिज्म हुआ। अब मल्टीसेल्यूलर माइक्रोऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या हो गया? like algae are multicellular organisms, right? fungi, it's also multicellular. सिंगल सेल में क्या हो गया? अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ, अमीबा एक्सेट्रा। फाइन, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमें पता चल रहा है सिंगल सेल भी होता है और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। अब ये रहते कैसे इन्वायरमेंट में, कहाँ पे ये रहते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज में सरवाइव कर सकते हैं, कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। दे कैन सरवाइव इन एनी क्लाइमेट। Clear? Any climate means from icy cold, ice cold climate, बहुत ज्यादा ठंडी जगह से, to hot springs means गर्म से गर्म जगह पे भी रह सकते हैं। ठंडी से ठंडी जगह से लेके गर्म से गर्म जगह तक वो कहीं पे भी रह सकते हैं। आई बात समझ में? चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो कोई हिली एरिया हो, राइट, तो किसी भी तरह के क्लाइमेट में वो सरवाइव कर सकते हैं। वन मोर थिंग, दे कैन ग्रो और एग्जिस्ट फ्रीली or they can grow on other organism also. Grow on other organisms. Clear? वो खुद अकेले भी ग्रो कर सकते हैं और वे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। This is given in totally NCERT.
अभी तक हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। उसके बाद वो किसी भी तरह के क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं, चाहे वो ठंडे से ठंडा क्लाइमेट हो और गर्म से गर्म क्लाइमेट हो, इवन इन डेजर्ट और हिली एरियाज। They can grow freely, they can exist freely, or they can grow on other organisms also. Here, like if we take the example of viruses, वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, अगर उसके पास होस्ट बॉडी होगी तभी वो ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वायरस एक एक्सेप्शन वी कैन से, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर हमने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करता है, बाहर भी ग्रो करता है और किसी बॉडी के अंदर भी ग्रो करता है। अमीबा, अमीबा सिंगल सेल्ड है, इट ग्रोज और एग्जिस्ट फ्रीली, राइट। So I hope you are clear with this topic. Now relation between microorganisms and human. Microorganisms, ये बात हमने पहले भी पढ़ी, they can be beneficial while they can be harmful also and can cause diseases. बेनिफिशियल कैसे हैं, हमारे फार्म में, हमारी फील्ड्स में ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टाइल कर देते हैं या फिर हेल्प करते हैं कोई भी फूड आइटम्स बनाने में, लाइक कर्ड है, केक है, ब्रेड है, इनमें बैक्टीरिया यूज होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक्स यही है हमारे, हाउ आर दे बेनिफिशियल फॉर टुडे, हार्मफुल इफेक्ट्स दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। First of all, we will study about friendly microbes. How are they friendly for us, right? So it's a good microbe, it's happy and make us happy also. Microorganisms used for various purposes like preparation of curd, bread and cake. They have been used for production of alcohol. They also help in cleaning the environment, like preparation of humus, making the soil fertile. Right. They are also used in the preparation of medicines also. Medicines are also made with the help of microbes. They are used for increasing fertility by fixing nitrogen. Fixing nitrogen is very important topic और ये हमारी बुक में अलग से दिया भी है, डिटेल टॉपिक, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। ज्यादातर जितने पेपर होंगे उनमें फिक्सिंग नाइट्रोजन आएगा ही आएगा। अगर ये चैप्टर है तो then fixing nitrogen is a compulsory topic to study. So first वर्ड क्या है, friendly microbes का, making of curd and bread. How? Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus, it helps in preparing of curd. It multiplies in milk and converts it into curd. आपने देखा होगा कि रात को सोते टाइम या सुबह सुबह हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स क्या करेंगे या फिर मम्मा क्या करती हैं, दूध होता है उसमें थोड़ा सा दही डाल देती हैं और सुबह हम देखेंगे तो वो पूरा दही मिलता है हमें, दूध जो था। कैसे? क्योंकि लैक्टोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है, ये उस मिल्क में मल्टीप्लाई हो जाता है और कन्वर्ट कर देता है उसे in the curd. These are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items. Curd is an important ingredient of rava, which is called suji also. Suji, idlis and bhaturas. दही, कर्ड जो है वो बहुत सारी जगह हमारा यूज होता है, keep it in mind. It can be asked in the test also, uses of curd. Or how lactobacillus converts the milk into curd, or how the milk is converted into curd. Name the bacteria used for converting milk to curd, making for cheese, pickle. Clear? These questions can be asked. Next is commercial uses of microorganisms. Microorganisms are used for large-scale production of alcohol, wine and acetic acid. Acetic acid is actually vinegar.
विनेगर हमारे घरों में भी इजीली अवेलेबल होता है. So microorganisms are used for the production of alcohol. I hope you know what is alcohol, wine and vinegar. So विनेगर को तो हम खाने की चीजों में भी यूज कर सकते हैं फॉर द टेस्ट ऑल्सो. और अगर हम जैसे स्वेलिंग के लिए अगर हमारे पास मैदा है, हमने मैदे को गूंद के रखा तो उसकी स्वेलिंग के लिए विनेगर हम उसमें ऐड करते हैं. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. अल्कोहल और वाइन जो है इनका जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. कर्ड के लिए कौन सा कर्ड चीजें जो थी इनके लिए कौन सा बैक्टीरिया था? लैक्टोबैसिलस. एंड फॉर अल्कोहल एंड वाइन yeast is used and it is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat and rice. I think it's not clear to you. It is written as barley, wheat and rice. Now is it clear? The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Fermentation can be asked. The process of conversion of sugar into alcohol. जब हम किसी भी शुगर को, शुगर या डज नॉट मीन जो हम मीठी चीनी खाते हैं, शुगर को जब हम एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, then this process is known as fermentation. Can we move forward? The third use is medicinal use. It is also used for preparing medicines, which are called antibiotics. Antibiotics are prepared with the help of microorganisms. The source of medicines given by doctors when we fall ill is microorganism. जो भी मेडिसिन हमें डॉक्टर देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, उनका मेन सोर्स क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म. मीन्स medicines are prepared by microorganisms. They kill or stop the growth of disease causing microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म ही माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को काटता है, जैसे लोहे को लोहा काटता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, उसे हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स की जो यूज से मेडिसिन बनती है वो काटती है. एंड सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. These days a large number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Main source is microorganisms और microorganisms में भी mainly bacteria and fungi. Some examples are given of antibiotics: streptomycin, tetracycline, erythromycin. Antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Specific microorganisms से ही मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक्स बनती है. ये नहीं किसी भी माइक्रो उठाया, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म खा गई, अब हमने से एक मेडिसिन बना दी, लो हो गया क्योर. नहीं, स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो किए जाते हैं to cure a variety of diseases. It's actually used, printing mistake, used to check microbial diseases in animals and control many plant diseases. What is used? Antibiotics, or we can say microorganisms are used to check microbial diseases in animals and to control many plant diseases. Our next topic is vaccine, or we can say vaccination. What is vaccination? जब हम छोटे थे, पैदा हुए थे, उस टाइम हमें at a regular intervals we are given vaccination. We are given injection of different diseases like polio. पोलियो का वैक्सीनेशन दिया जाता है, पोलियो का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि हम उससे बचे रहें, प्रिवेंटेड रहें, हमें वो डिजीज हो ना. तो जब भी हम लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल. तो जब भी हमें कोई डिजीज होता है, राइट, डिजीज हुआ, इसमें या तो बैक्टीरिया होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे. तो जब भी हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, लेट सपोज ये हमारी बॉडी है, ठीक है, अभी हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो यहाँ कोई तो ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल्स होंगे जो इससे फाइट बैक करेंगे. और अगर ये वीक होंगे
तो ये इन्हें किल कर देगा, इन्हें खत्म कर देगा, राइट। लेकिन अगर हमारी बॉडी से पहचान ही नहीं पाई तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी जो है उस डिजीज को पहचान सके, उसे फाइट बैक कर सके। उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो पाए हमारी बॉडी में, राइट। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जो हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया आता है या जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें किल करता है, ये काम होता है एंटीबॉडीज का। तो उस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वैक्सीनेशन दिया जाता है। क्लियर? सी, ये हमारी बॉडी का एक सेल था, ये आउटर एनवायरनमेंट था। अब भाई ये आए बैड बैक्टीरिया, इन्होंने क्या किया, हमारे सेल में घुसने की कोशिश की। अब हमारे सेल में क्या है, एंटीबॉडीज है, ये क्या करेंगे, इनसे फाइट बैक करेंगी, राइट। ये एंटीबॉडीज इनसे फाइट बैक करेगी, लेकिन फाइट तभी कर पाएंगी ना जब ये इन्हें पहचानेंगी। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इनसे लड़ेंगी, इन्हें खत्म कर देगी, दे किल देम, राइट। तो इसी तरह से वैक्सीनेशन काम करता है। जब हमारी या फिर जब हमारी बॉडी में दूसरी बार वो बैक्टीरिया या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वो इजीली किल कर पाएंगी। तो इसी तरह वैक्सीनेशन भी काम करती है। जब हमें वैक्सीनेशन दी जाती है तो एक्चुअली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है, ताकि वो एंटीबॉडीज जो है फ्यूचर में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई डिजीज हम पे अटैक करें तो वो इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर सके और उससे फाइट कर सके, उसे किल कर सके। लेट्स रीड इट इन NCERT also. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibody to fight the invader. Invader means जो घुसा है हमारी बॉडी में, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी माइक्रोब। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again, right? अगर सपोज हमारे घर में कोई आदमी घुसा है, हमें नहीं पता कौन, हमने उसे आने दिया, अब वो चोरी करके भाग गया, अगली बार वो आएगा तो हमें पता होगा ना, हम उसे घुसने नहीं देंगे, उसे वहीं से भगा देंगे कि भाग जाए यहाँ से। So if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. जो एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी में रहती हैं और हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इसी तरह से कुछ वैक्सीन भी वर्क करती हैं। सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। हमने क्या सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। So this is how these diseases are prevented with the help of vaccination. हमें वैक्सीनेशन दी जाती है तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है हमारी बॉडी में, और वो एंटीबॉडीज फिर क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्लियर? In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases, right? Can you prepare a list of these diseases? So it's your homework. क्या क्या है, लाइक पोलियो है, इसी तरह के कितने डिजीजेस हैं, कोलेरा, अभी हमने ऊपर भी पढ़े थे कुछ डिजीजेस। So it's your work. Now we will study about it. Vaccination. It is essential to protect all children against the diseases. Necessary vaccines are available in nearby hospitals. This is not of our use. You might have seen advertisement is given regarding the vaccination of polio. Right, polio is one of the main disease, and its vaccination is very important during our childhood under Pulse Polio program. प्रोग्राम आपसे पूछ सकते हैं कौन से प्रोग्राम के अंडर पोलियो की वैक्सीनेशन दी जाती है, तो इट्स पल्स पोलियो प्रोग्राम। कीप इट इन माइंड। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। अब कई डिजीजेस के तो हमें इंजेक्शन लगा देते हैं, ये लो लगा दिया इंजेक्शन। छोटे बच्चों को क्या करते हैं, ड्रॉप्स दे देते हैं, पोलियो ड्रॉप्स।
होता है, एक ऐसे होता है यहाँ पे, वी कैन से एक ड्रॉप टाइप का होता है, उसे हम ऊपर से दबाते हैं तो भर भी जाता है, फिर दबाते हैं तो उसमें से क्या होता है, ड्रॉप निकल जाती है, तो पोलियो ड्रॉप देते हैं उससे। पोलियो की अब मेडिसिन तो कई तरह में अवेलेबल होती है ना, इंजेक्शन में भी होती है, जो मेडिसिन खाते हैं उनमें भी होती है, जो गोल वाली होती हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं, दीज आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दे कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन एज ड्रॉप। फाइन, तो आपको नाम याद रखना है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. स्मॉलपॉक्स जो थी वो स्टार्टिंग में बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और उसका कोई इलाज नहीं था, जैसे अभी कोरोना है, लेकिन इसकी इतने जो हमारे डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने इतनी मेहनत की, उसकी वैक्सीनेशन तैयार की और ये धीरे धीरे वर्ल्ड में से खत्म होती जा रही है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो हमने वैक्सीनेशन में क्या पढ़ा? वैक्सीनेशन क्या होती है? Wait a minute. It produces antibodies against the disease causing microbes. Given in the form of ड्रॉप और इंजेक्शन, राइट। इंजेक्शन के तौर पे भी दिया जा सकता है, ड्रॉप के तौर पे भी दिया जा सकता है। छोटे बच्चों को कैसे देते हैं? ड्रॉप, एंड दूस अदर्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन ऑल्सो। उसके बाद हमने वैक्सीनेशन में पढ़ा, एक प्रोग्राम पढ़ा था पोलियो से रिलेटेड। तो वो प्रोग्राम कौन सा था? पोलियो वैक्सीनेशन आर गिवन अंडर द प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम था? पल्स पोलियो प्रोग्राम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा, पोलियो के अलावा कौन सी ऐसी डिजीज थी जिसका क्योर पहले इम्पॉसिबल था और अभी पूरे वर्ल्ड में से हट गई है? इट्स स्मॉल पॉक्स, राइट। सबसे पहली वैक्सीन बैटन स्मॉल पॉक्स की ही बनी थी, स्मॉल पॉक्स। क्लियर? So I hope you are clear with this topic, vaccination. Next is increasing soil fertility. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गीज लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. ऐसे microbes which helps in increasing soil fertility by how? By fixing the nitrogen are called biological nitrogen fixers. You can see nitrogen fixing blue green algae. तो increasing soil fertility में मेनली क्या है? कुछ बायोलॉजिकल फिक्सर्स है, नाइट्रोजन फिक्सर्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन fixers which helps in
increasing soil fertility by fixing the nitrogen. Clear? तो इस तरह आपने देखा कितने सारे यूजेस हैं हमारे माइक्रोब्स के। दे आर हार्मफुल ऑल्सो, बहुत ज्यादा यूजफुल है तो हार्मफुल भी है, ये भी देखेंगे हम। तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। ये प्रोसेस भी है हमारा, एक सेपरेट टॉपिक है इसी चैप्टर में। तो अभी के लिए आगे बढ़े। Our last topic, which is cleaning the environment. So first let's read it in the NCERT. Bodhu and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and foods from nearby. अब माइक्रोब्स हमने क्या किया था, पीछे भी हमने कुछ वीडियोस में मैंने बार बार बताया कि माइक्रोब्स जो होते हैं सॉइल में, दे आर वेरी हेल्पफुल टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस। अब इससे क्या होगा, जब ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट करेगा मीन्स हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन ही तो कर रहा है। जो वेस्ट है उसे यूजफुल मटेरियल में वो कन्वर्ट कर रहा है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट हार्म भी नहीं हो रहा और क्लीन भी हो रहा है। Again we will read it how they converted into humus. They put them in a pit meant for waste disposal. एक पिट में रख दिया, we can say डस्टबिन। लेकिन डस्टबिन में हम क्या करते हैं, सब कुछ मिक्स कर देते हैं, वहीं प्लास्टिक, वहीं ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऐसे पिट में रखा विच इज मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, मीन्स फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट। After some time, it decomposed and got converted to manure. अब ये कैसे हुआ? हमें तो पता है, बुद्धू और पहली वांटेड टू नो, लेकिन हमें तो पता है ना कैसे हुआ। जब उन्होंने पिट में डाला तो वहाँ पे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उन्होंने उसे एज ए फूड ईट किया और उसे डिकम्पोज कर दिया। उन्होंने डिकम्पोज किया तो जब बचा वो क्या बन गया, मैन्योर, ह्यूमस, वी कैन से देम एनीथिंग। See, the plant waste has been converted into manure by the action of microbes. Microbes की हेल्प से जो मैन्योर में हमने कन्वर्ट कर दिया वेस्ट को, जो भी वेस्ट था उसे हमने मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। इट्स आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। द न्यूट्रिएंट्स released in the process could be used by the plants again. ऑब्वियस सी बात है, रिलीज क्या हुआ है, ह्यूमस हुआ, मैन्योर हुआ, तो उसे प्लांट्स अगेन यूज कर सकते हैं, राइट। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन इनऑर्गेनिक वेस्ट, फाइन। सी, हमने पॉट बी में पॉलिथीन बैग रखे थे, एक्टिविटी की थी दैट आई डिडंट रीड। एम्प्टी ग्लासेस रखे थे, बॉटल्स रखी थी, ब्रोकन टॉय पार्ट्स रखे थे। ये सब क्या है, प्लास्टिक की चीजें, मेटल नहीं, मेटल चीजें। Means these are inorganic waste or these are not organic waste. So microbe could not act on them. यहाँ पे them का मतलब क्या है, inorganic waste. Fine. हमने क्या किया कि environment को कैसे clean करते हैं microbes? They convert organic matter और organic waste into manure और वी कैन से ह्यूमस, उसे ह्यूमस या मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है, हेंस क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो आई होप मुझे आपको आज के जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए वो क्लियर होंगे। हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू। आज हमने पार्ट 1 किया, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। फाइन, पार्ट 2 in our next video. तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।